Hello friends, Namaskar, good evening. Welcome you all to another enlightening episode of Revival Sutra Sunday. यहाँ हम बात करते हैं getting your mind, body and spirit all aligned through spirituality, self-discovery and more for your holistic well-being. I am your host Sangeeta, an occult healing therapist, a spiritual coach and the founder of Arcade Universe. And it's my pleasure to be your guide in this transformational journey. Welcome you once again. आपने कभी सोचा है कि आज के मॉडर्न लाइफ में भी एस्ट्रोलॉजी का कुछ रोल है? क्या रोल प्ले कर सकता है इस फास्ट पेस्ड लाइफ में? हम सब अपनी राह ढूंढ रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी एंशिएंट साइंस है जो हमें इस सफर में गाइडेंस दे सकती है। चाहे करियर डिसीजन हो या रिलेशनशिप्स, आपका बर्थ चार्ट आपके लिए क्या कह सकता है, क्या कह रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। So let's discuss this in more details with our today's guest of the evening, Miss Deepal Upadhyay Shah. Deepal loves to explore the mysteries of the universe through her spiritual practices, being a Vedic astrologer. She also practices numerology, Vastu and graphology as well. Hello Deepal, I'm so happy and excited to welcome you here today. आज आपसे जानेंगे ऑल अबाउट द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। Hi Sangeeta, thank you for this lovely introduction. So हेतल, आज हमें बताइए कि व्हाट इज टू स्टार्ट विथ, लाइक व्हाट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, होता क्या है और हाउ इट हैज इवॉल्व्ड और चेंज ओवर द पीरियड, Okay, basically astrology has a rich and diverse history spanning thousands of years with root in Asian culture and civilization. So basically astrology is originated from Mesopotamia, where the Sumerians and Babylons who described the 12 signs of zodiac, and they developed a sophisticated astronomical system. Astrology spreads through Egypt, wherein it merged with our regional beliefs. And in India, the Vedic civilization bring astrology to our Indian culture, and they developed Jyotish, a system of astrology which is still in practice today. So you mean to say कि it has origin in the Western world, इंडिया से पहले, because I was having an understanding कि ये Vedic astrology is the oldest one and Western thing came from our side. I mean, got inspired by us. But now I come to know that some other information. So it's really Right. amazing. So for India, astrology is like more than it's spanning over 5,000 years. But yes, it has originated from Mesopotamia and Babylons. Even Greek, Roman, they all are following our Vedic this astrology even, and Vedic is mainly our Indian culture. Okay, so how it is different, like Vedic astrology and Western astrology, how both are like different or similar? So want to understand that. So mainly Western astrology focuses on the sun sign. So how the sun is moving, right? So they are mainly focusing on the sun movement. Whereas in case of our Western Vedic astrology, they mainly focus on the like overall approach of individual's birth chart, and we see as an like birth chart as a life cycle of human being. So ultimately they both, like even whether it is Vedic or whether it is Western, they both focuses on the self-awareness and personality development of human. So as we there is one like mantra in our Indian culture कि जैसे सागर से जो बरसात का जो पानी आता है वो अल्टीमेटली सागर में ही जाता है, राइट? सो सेम वे भले ही ब्रांचेस कुछ भी हो, बट अल्टीमेटली वो ह्यूमन बीइंग के सेल्फ अवेयरनेस के लिए सपोर्ट करेंगे। Yes, very rightly, nicely said. So astrology में जैसे sun, moon and rising signs influence करता है like personality or be it life path. So how it happens like? Okay, so basically sun is our what we call it as sun mainly focuses on our inner nature,
our character traits and our influences, right? So basically बंदे का जो भी पर्सनालिटी है, उनकी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस है, लाइफ का पर्पस क्या है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ईगो, ये सारी चीजें सन देता है. सो जैसे ही कोई भी लाइक ये टाइम से लेके ये टाइम के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा. या तो जब भी सन वीक होता है तो उनको लोगों का अप्रोच करने में प्रॉब्लम आता है, तो वो सारी चीजें सन देता है. जैसे मून है, तो मून को मन के साथ ये करा है, रिलेट करा है. जैसे अपना इनर वर्ल्ड हो गया, अपने इमोशंस, अपने इंट्यूशंस, ये सारे मून डिनोमिनेट करता है. जो भी इमोशनल रिस्पॉन्स अपन थ्रो करते हैं, या तो अपनी हैबिट्स है, वो थॉट्स अपने, वो सारे मून के कंट्रोल में है. एंड यस, सेम विथ लग्न, वो भी बंदे का राइजिंग साइन है. दैट इज हाउ वी प्रेजेंट आवर सेल्व्स टू द वर्ल्ड, अवर आउटर सेल्फ, राइट, एंड अवर लाइफ पाथ. सो basically rising sign designs our outer personality, our physical appearance, our approach to life and our life journey. And together all three signs form a unique combination that shapes someone's personality traits, strengths and weaknesses, emotional patterns, life path and the purposes and relationships. So this is basically an astrology, and those three signs are overall approach to the life. And yes, while decoding all these things, we should keep in mind that astrology is a very complex subject. So these signs are just a starting point for self discovery and understanding. सो ये जो 12 साइंस है, एक जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो फॉलो करता है, एंड इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो नेटल चार्ट होता है उस बना, तो द चार्ट फॉलो करके जो भी बर्थ टाइम के हिसाब से बनता है, तो उसमें कुछ सिमिलरिटी होता है दोनों तरीकों से करने में, और कि दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट? ओके, सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि सन है वो कंप्लीटली अलग चीज को हेड करता है, वेरएस जो लग्न चार्ट है वो कंप्लीटली अलग चीज को ये करता है, लाइक शो ऑफ करता है. वो चीज में क्या होगा कि सन है, तो जब भी सन साइन से आप कुछ भी चीजें प्रेडिक्ट करते हो, तो वहां पे सेंटर में खाली सन रहेगा. वेरएस जब भी आप लग्न से प्रेडिक्ट करते हो, तो सन इज पार्ट ऑफ योर लग्न चार्ट. So it is like more vast and more in depth, I will say, कि more detailed way, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और भी in depth analysis हो रहा है, कि not just a partial of sun is a part of that, you mean to say, right? Correct. So astrology, as you said, कि it can be a tool for self awareness or emotional or mental health को भी help कर सकता है to heal or something. So how it is happening, like? ओके, सो बेसिकली इन केस ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हाट हैपेंस इज कि कभी किसी का टाइम जैसे खराब चलता है, कि अपन बोलते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, या किसी को राहु परेशान कर रहा है, राइट. एट दैट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी हेल्प कि हाँ, समथिंग इज रॉन्ग. अभी वो समझ में आया, तो उसके बाद उस पर काम कर सकते हैं. तो वो टाइम पे स्पिरिचुअल जो भी सपोर्ट हो गया, मंत्र हो गए, या वो सारी चीजें अपलिफ्ट करने में हेल्प करती है स्टेट ऑफ माइंड. एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट कि लोग डरते हैं उससे, या अप्रोच करने से डरते हैं कि नहीं यार किसी को बताया तो क्या हो जाएगा, राइट. इट इज नॉट लाइक दैट. बेसिकली इट हेल्प्स इंडिविजुअल. हाँ, चलो ये थिंग यहाँ पे गलत जा रही है, तो हाउ वी कैन वर्क ऑन इट एंड हाउ टू करेक्ट इट. दूसरा, वो चीज से एटलीस्ट आपको टाइमलाइन समझ में आती है कि ठीक है, ये थोड़ा अप डाउन चल रहा है, मगर ये टाइम तक खराब रहेगा. बिकॉज आप देखेंगे तो कोई भी एक प्लेनेट एंटायर जर्नी में रिजल्ट नहीं देता है. जैसे एक मूवी चल रही हो, तो वहां पे हीरो का भी रोल है, विलेन का भी रोल है, साइड कैरेक्टर्स का भी रोल है, राइट. सो विद इन दिस एस्ट्रोलॉजी देयर आर 9 planets. एवरी प्लेनेट हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो उनके टाइम पे तो नॉट नेसेसरी कि एक चीज खराब है तो आपका पूरा लाइफ खराब है. तो सब अपना अपना रोल प्ले करके निकल जाएंगे. एग्जैक्टली. तो आपने अभी एक बात बताई कि शनि का साढ़े साथी, जो हम बहुत सुनते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू साढ़े साथी, एंड अनदर थिंग इज काल सर्प योग एंड ऑल. तो ये होता क्या है, एंड हाउ इट इज लाइक, यू नो, हाउ डज इट इम्पैक्ट, और कितना खतरनाक है और कितना इम्पोर्टेंट है जानना या नहीं जानना इन समवन्स लाइफ?
ओके, तो जैसे शनि को आप देखोगे ना, तो शनि को हम न्याय का देवता मानते हैं कि एटलीस्ट शनि गिव्स जस्टिस, या राइट? सो इन दैट केस जब भी साढ़े साती होती है ना, तो साढ़े साती शायद उन्हीं लोगों को परेशान करती है, जहां तक अपने कंसल्टेंसी में मैंने देखा है कि पास्ट कर्मा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली अ बैगेज ऑफ कर्मा एंड धर्मा, राइट? सो आप जो भी प्रारब्ध में लेके आए हो, वो आप यहाँ पे भुगत रहे हो। तो इफ योर डीड्स आर गुड, प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट का जो भी बैगेज कैरी करके हम लेके आए हैं, राइट? सो शनि अल्टीमेटली वो चीज को जस्टिस देगा। नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम खराब ही होता है। मैंने वैसे भी बहुत से इंसिडेंसेस देखे हैं कि जहां पे शनि ने ड्यूरिंग साढ़े साथी बंदे को डाउन पोजीशन से एकदम टॉप पोजीशन तक लेके गया हो, राइट? सेकेंडली, शनि की साढ़े साथी के टाइम पे ना बंदा थोड़ा, जैसे बताया मैंने कि मन है, तो मन का बहुत फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज इमोशनली कनेक्टेड है वो चीज। जब भी सैटर्न वो मून के ऊपर से जाएगा, वो टाइम पे बंदा इंट्रोवर्ट होगा, वो अपने आप को स्टडी करने में लगेगा। सो एट दैट टाइम जब भी साढ़े साथी आनी आती है ना, तो वो टाइम है कि आप स्पिरिचुअली ज्यादा कनेक्टेड होंगे डिविनिटी से। Okay, means during Saraswati you get more connected with divine, I mean spiritual practice or something. करेक्ट, बिकॉज मन उससे उदास रहेगा वो ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज शनि है, उसका काम है चीजें ड्राई करना। मून है जो हमेशा उसका अप डाउन फेज रहता है। तो जब भी वो मून, मतलब जो भी आपकी इमोशंस है उसके ऊपर से ड्राइनेस जाती है, तो इमोशंस थोड़े कम होंगे। सो एट दैट टाइम इट कनेक्ट्स अस विद द डिविनिटी, कि बंदा अंदर अंदर गया, अपने अंदर झांकने का मन करता है ड्यूरिंग साढ़े साथी। लाइक दैट। और फिर काल सर्प का क्या होता है कि, और काल सर्प में मैंने वो भी सुना है कि बहुत सारे कुछ पूजा होता है, एंड डज इट इम्पैक्ट और हैबिट, हाउ, मतलब रिलेशन क्या है? ओके, सो काल सर्प है वो बेसिकली ड्रैगन का वो माउथ और उसका पूंछ, ये दोनों चीजें बताई हुई है काल सर्प में। अभी राहु और केतु से काल सर्प बनता है, तो राहु है वो भी खराब नहीं है और केतु है वो भी खराब नहीं है, एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताऊं तो। बिकॉज राहु है ना, वो बंदे की महत्वाकांक्षा है, कि उसकी जो भी हम बोलते हैं ना कि यार तृष्णा, कि मुझे ये अचीव करना है, एम्बिशन इज राहु, एंड केतु इज मोक्ष। सब ये दोनों के बीच का वो एंटायर जर्नी है। अभी वो इम्पैक्ट करेगा कि वो कौन कौन से हाउसेस के बीच में वो चीज बनती है। सो इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि काल सर्प खराबी है। देर आर मैनी टाइम्स जहां पे आप देखेंगे कि जो जो लोगों ने अपना नाम किया है ना, दे आर हैविंग काल सर्प दोष इन देयर हॉरोस्कोप। Oh, really? So ये this is another brilliant different point of view, क्योंकि जहाँ तक अब तक सुना था, लाइक काल सर्प लोग डरते हैं इन द सेंस कि काल सर्प का तो खराब ही होता है, पता नहीं सांप काट लेगा, whatever happens. So there are lot of I think lot of myths and lot of wrong notions and misconceptions इसके अराउंड ना काल सर्प, और लेकिन इसको हमेशा नेगेटिव वे में लिया गया है, बीट काल सर्प और बीट साढ़े साती, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग डर जाते हैं और कुछ ना कुछ मतलब खराब होगा, खराब ही मतलब कुछ अच्छा हो सकता है भी है, वो नहीं सोचते। लाइक आई थिंक मे बी ठीक से वो बताया नहीं गया, द वे यू हैव एक्सप्लेन टुडे। I think that is very different from what is the knowledge is available in the, I'll say in the market में जो भी जानकारी है लोगों को। The only thing is काल सर्प gives ups and down, तो बंदे को बहुत मेहनत कराता है वो, मगर एक जगह पे वो पहुंचाता भी है। सेम विथ शनि, शनि भी नॉट ऑलवेज वो खराब है, मगर हाँ वो कुछ भी चीज इजीली नहीं देगा। So क्या करना चाहिए किसी का अगर ये दोष जो भी पाया जाए, जो भी ये चार्ट में, तो उस टाइम पे उस बंदे को क्या करना चाहिए? लाइक ओके, सो ये चीज में एस्ट्रोलॉजर का इंपॉर्टेंस आएगा। रीजन बीइंग कि सोशल मीडिया या आप इंटरनेट या उस पर बहुत सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट जैसे मैंने बताया कि काल सर्प इज नॉट ऑलवेज खराब, शनि की साढ़े साथी इज नॉट ऑलवेज खराब, राइट? सो इफ आई डिस्क्लोज सम रेमेडीज, हो सकता है कि जिस बंदे को उसका जरूरत नहीं है, ही इज डूइंग सो, इज लाइक यू आर टेकिंग विटामिन्स व्हिच इज नॉट नेसेसरी फॉर योर बॉडी। एग्जैक्टली। सो अल्टीमेटली वो चीज का आप या तो ओवर कर दोगे या उसको परेशानी में डालोगे अपने आप को। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करो वो टाइम पे। बिल्कुल। सो ये आपने और एक बात बताई कि जो एस्ट्रोलॉजी जो है हम कैरी करते हैं, लाइक पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है।
So और एक चीज आता है like पितृ दोष or something like which is like connected to your past, connected to your ancestors and all. So in that case how can astrology वो एरिया को एड्रेस करता है या हील कर सकता है ancestor patterns को और कोई generational trauma को like. Okay, so पितृदोष is not always खराब as per my perception, right? मेरा view है ये. The reason is कि पितृदोष is something which is related to our पितृs, right? So आज मैं हूँ तो कल मैं अपने बच्चों का खराब कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? Exactly. The only thing वो, और दूसरा कि पितृदोष कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा. तो पितृ हमेशा अपने को क्या देते हैं? तो सद्बुद्धि देते हैं, संपत्ति देते हैं और संतति देते हैं. Misguidance. करेक्ट. हाँ, सो दे गिव लाइक गुड मति कि अच्छी बुद्धि रहेगी तो अपना घर प्रॉपर चलेगा. दे गिव वेल्थ, पैसा अच्छा मिलेगा. या फिर संतति, जहाँ पे भी आप देखोगे पितृदोष है इसलिए बच्चे होने में प्रॉब्लम होता है लोगों को. सो इट्स लाइक दैट. सो पितृदोष इज नॉट समथिंग कि वो हमको हैरेस करते हैं, बट यस आप देखेंगे तो अपने हिंदू परंपरा में देयर आर लाइक आफ्टर डेथ सम रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं. कहीं कहीं ऐसा होता है कि बाय पैसेज ऑफ टाइम हम कुछ चीजें ड्रॉप करते जाते हैं, बट वी डू नॉट एग्जैक्टली नो कि हाँ ये वहां तक पहुंचा है. तो उसकी वजह से हो सकता है दिस इज जस्ट अ सॉफ्ट रिमाइंडर कि आप हमको भूल गए हैं. एटलीस्ट इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस थिंग्स देन यू विल बी ब्लेस्ड विथ व्हाटएवर इज मिसिंग इन योर लाइफ. हाँ, बिकॉज अगेन द पितृदोष को भी बहुत नेगेटिवली लिया गया है क्योंकि कुछ because of blockages आ रहा है whatever like पितृदोष के कारण. So maybe your ancestors are not happy with you that way. So we Exactly. ये भी like you can have some remedies और ये सब कर सकते हैं, right? करेक्ट. तो आप जैसे देखेंगे तो पितृ है ना, तो पितृ का मेन आज अपने पेरेंट्स है तो उसका कारक हम सूर्य को मानते हैं, राइट? सो पास्ट जो गया आपको वो नहीं पता है, बट एटलीस्ट यू कैन वर्शिप वॉट एवर इज प्रेजेंट विथ यू, राइट? सो सन आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इन दैट केस यू नीड टू वर्शिप योर, आप डैडी के पांव छुओ, उसमें तो कोई कॉस्ट नहीं लगता है. यू कैन ऑफर वाटर टू द सन, सो वो भी आपको एटलीस्ट कहीं पे सन मजबूत करने में हेल्प करेगा. सेम विथ आप पितृदोष देखेंगे तो राहु था, वो अतृप्त था, उसको तो वो अमृत पीना था मगर वो पी नहीं पाया था, तो उसको किसने स्टॉप किया था? तो विष्णु जी ने उसको कंट्रोल किया था. तो while someone is having that पितृदोष, he or she needs to worship भगवान विष्णु. Okay. हाँ, ये this is a nice connection. So yeah, astrology now become, if I say, it's like one of the mainstream in occult science में, in the first phase में आता है. So how does it differ from other spiritual or occult science practices? जैसे देखेंगे ना तो एस्ट्रोलॉजी है वो सनातन है, विच इज सालों से वो चलता है. सेकेंडली कि एस्ट्रोलॉजी में मेनली जो भी प्लैनेट्स है या ओवरऑल बर्थ चार्ट है उस पे फोकस करते हैं. Whereas in case of other ये भी अदर occult practices है, जैसे टैरो रीडिंग हो गया, तो वहां पे we mainly focus on the cards and intuition what we get from that card, right? Secondly, in case of numerology, we examine the numbers and their vibrations. And secondly, with any other healing practices, that they mainly concentrate on the balancing of these energies. So जैसे आप देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी इस पूरा पैकेज है ये सारी चीजों का, बिकॉज व्हेन यू रिफर समवन्स बर्थ चार्ट यू विल गेट दैट इंट्यूशन. जैसे वो प्लैनेट्स खुद आपको आके बताएंगे कि यहाँ पे ये चीज हो रही है. सेकेंडली विद इन दैट चार्ट यू विल सी numbers are already there with the zodiacs. So again numerology is also there in the astrology. So ultimately that is why this astrology is somewhere like connected to all other practices. So there's interconnectedness with the other tools. Correct. Very nice. But other practices are focusing on the specific aspects, whereas astrology is carrying holistic approach. So जैसे you said like person का natal chart जो भी है, so how can that reveal the emotional wounds और कोई karmic lessons है कि that need your healing? तो कैसे पता चलता है किसी के चार्ट से? Okay, so
वो ना बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, बिकॉज आप देखेंगे तो एक लग्न चार्ट में कितने सारे कॉम्बिनेशंस है। तो 12 साइंस, उसके अंदर के 12 प्लैनेट्स, और हर एक ग्रह को आप अलग अलग जगह पे प्लेस करोगे ना तो समझेगा। दूसरा, वो ग्रह क्या डिग्री पे बैठा है, वो ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो वो पूरा समंदर है कि आप एक चार्ट को देख के कभी भी कोई चीज, मतलब बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल चार्ट, कि नॉट नेसेसरी, जैसे कि मेष लग्न है किसी का, तो मेष लग्न वाले सारे सेम कभी नहीं होंगे, बिकॉज हर एक जगह पे कुछ ना कुछ डिफर होगा। इवन आप देखेंगे तो एक ही हॉस्पिटल में पैदा होने वाले दो अलग अलग लोग हैं, जिसका 10 मिनट या 15 मिनट के बाद जन्म होता है, राइट, उनकी पूरा लाइफ पाथ अलग रहता है। एग्जैक्टली हाँ, वो भी तो है लाइक सेम जगह पैदा होके भी सेम टाइम पे भी द एंटायर लाइफ इज Correct. डिफरेंट। ट्रू। सो now as you said, like there's so much of relevance of astrology in our life. So where do you see astrology heading in the future? कि अभी बहुत सारे और भी no other spiritual practices भी है, and what is the future astrology का आपको लगता है, like will it continue to grow the popularity, or where it is heading in our modern life? Okay, so astrology's future looks very promising to me, with a continuous increase. जैसे वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है nowadays, आप देखेंगे तो people believes in astrology, right? And the way we have like AI is there, people are like we are having easy access to all the applications, right? And astrology का growth is basically driven by लोगों का interest, as well as it gives one wellness to the people. And just because with the help of advances in technology and easy accessibility, people can grow, they recognize their self with personal like growth and self awareness. हाँ, वहीं पे मैं आ रही थी, लाइक हाउ अभी तो बहुत सारा कुछ एप्स में होता है, लाइक ना टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट लॉट ऑफ चेंज इन दिस फील्ड। तो द वे वी इंटरेक्ट और इंटरप्रेट एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि पहले तो मैनुअली करते थे, अभी इट हैपेंस विद सॉफ्टवेयर। सो कैसे ये चेंज जो है, हाउ गुड और नॉट गुड फॉर द स्ट्रीम एंड फॉर द प्रेडिक्शंस, हाउ एक्यूरेसी के हिसाब से भी कौन सा कितना एक्यूरेट होता है या नहीं होता है, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहूंगी। ओके, सो बेसिकली जो भी अपना एप्लीकेशंस रहेगा, तो दैट यस दे हैव मेड आवर लाइफ वेरी इजियर, बिकॉज पहले के टाइम पे क्या था, वी नीड टू मैन्युअली लुक इनटू दैट बुक पंचांग व्हाट वी कॉल इट, एंड उसमें से हम एक चीज बनाते थे। अभी वहां पे एक्यूरेसी का इश्यू आता था, बिकॉज क्या पता हवा आई, पत्ता घुमा और आपका पूरा लग्न चेंज हो गया, राइट? किसी ने सन को ये प्लेस के बदले में ये प्लेस पे रख दिया, या तो एक बॉर्डर है कि जो अपने को लगता है कि हाँ 29 डिग्रीज पे ये सन यहाँ पे मूव होगा, whereas हमने वो मूवमेंट कंसीडर नहीं किया और बनाया। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एटलीस्ट वी गेट दैट एक्यूरेट चार्ट इन आवर हैंड्स। बट यस, टू प्रेडिक्ट वी नीड एक्सपर्ट्स। जैसे आप देखोगे तो लैब में रिपोर्ट तो सबके होते हैं, बट दैट रिपोर्ट को स्टडी करना और उस पर क्या ट्रीटमेंट करनी है, उसके लिए तो आपको स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे जो ऑनलाइन में भी होता है ना, लाइक देयर लॉट ऑफ साइट्स वेयर यू कैन पुट योर डेट ऑफ बर्थ एंड यू गेट इन द प्रेडिक्शन। सो वो हमेशा आई हैव बीन वंडरिंग कि हाउ दे डू इट, बिकॉज दैट इज वेरी मच जेनरिक होता है। तो वो कैसे लाइक 10 मिनट में आपका पूरा बना के दे सकता है दैट वे इज, तो ये कितना ट्रस्ट वर्दी है, हमेशा दैट क्वेश्चनेबल फॉर मी। सो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? सो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने बताया ना, वो कॉम्बिनेशन है कि एक आपका पोजीशन प्लैनेट का एज ऑन डेट का पोजीशन, सेकेंडली आप जब भी पैदा हुए तो वो टाइम पे एक बर्थ चार्ट बना विच इज स्नैपशॉट ऑफ योर लाइफ प्लान। अभी उसके ऊपर ट्रांजिशन हो रहा है, बिकॉज प्लैनेट्स आर कीप्स ऑन मूविंग, राइट? सो वो तो चल रहा है। अभी उसकी इम्पैक्ट अपने होरोस्कोप पे जो आएगी ना, वो आप ऑनलाइन कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो करंट सिचुएशन उससे नहीं समझेगा। वेरी ट्रू, बिकॉज वहां के प्रेडिक्शन जेनरिक होंगे, वो चीज कैप्चर करेगा जो आप पैदा हुए तब लेके आए हो। कि सन सपोज किसी के 10th हाउस में पड़ा है तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, बट अगेन उसको भी तो उसका रोल लिमिटेड टाइम तक प्ले करना है। तो आज क्या होना है, या तो अभी किसका स्क्रिप्ट चालू हो रहा है, वो आपको ट्रांजिट से ही समझ में आएगा।
सो इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये ट्रांजिट जो है, जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट होता है, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट कि हाउ दे माइट इम्पैक्ट आवर लाइफ, जो भी वी कीप ऑन सेइंग कि अभी मूवमेंट हो रहा है दिस प्लैनेट का, और राहु का कभी कभी दिस जोडिएक में मूव हो रहा है, कभी दिस जोडिएक में मूव हो रहा है, तो वो होता क्या है? ओके, सो जैसे बताया, हर एक ग्रह को एक एक डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, कि एक मतलब एक ग्रह है जिसको डिपार्टमेंट दिया, पर उसके साथ उसको मल्टीपल वर्क्स भी अलॉट हुए हैं, राइट? सो जैसे जुपिटर है, दैट गिव्स प्रॉस्पेरिटी। तो जब जब भी जुपिटर है, वो इट्स अ लाइक गुड प्लैनेट, तो वो हमेशा अबंडेंस देगा, वो ब्लेस करेगा बंदे को। तो कोई कोई बार होता है ना कि मुझे घर कब लेना है, या तो मुझे ये एग्जाम देनी है, या तो आईलेट्स के बैंड्स चाहिए, तो वो टाइम पे जुपिटर है, उसका ट्रांजिशन बहुत मैटर करता है। सेम वे जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जानी है, या तो कोई भी चीज कि जहाँ पे आपको हिम्मत और साहस का जरूरत है, वो टाइम पे मास इसमें आएगा, मतलब उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो ये सारी चीजें, ट्रांजिट बेसिकली वो चीज है कि वो आपके बर्थ चार्ट में कब अप्लाई होता है और कब आपको वो फेवरेबल रिजल्ट्स देगा। सो कैन यू ब्रीफली से कि जो भी प्लैनेट्स इम्पैक्ट आवर लाइफ, जैसे जुपिटर इन्फ्लुएंस promote growth or wisdom, success, or Venus is for love, as we know, like Mars means action लेना है, और Neptune spirituality को influence करता है। So ऐसे ही like how these things we can harness for the healing with this understanding। हमें अगर इस ट्रांजिशन का पता चले, तो हम ट्रांजिशंस को अपने बेनिफिट में कैसे यूज कर सकते फॉर आवर जर्नी, फॉर आवर हीलिंग, आवर लाइफ जर्नी इन द सेंस। करेक्ट। तो यहाँ पे ना एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर किसी बंदे को सपोज करो कि जॉब चेंज करनी है, जब तक उसका टाइम ड्यू ही नहीं हुआ है, तब तक वो चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, ही विल नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी। ओह, सो कुछ ऐसा एट दैट टाइम, शॉर्टकट नहीं है, हाँ, कुछ ब्राइब नहीं कर कोई सकते? शॉर्टकट, हाँ, मतलब वो टाइम पे एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेगा कि भाई इतना टाइम रुक जा, ये टाइम आएगा जब यू नीड टू हंट फॉर अ जॉब एंड यू विल गेट गुड वन। ओके, सो देयर उसके लिए कोई रेमेडीज होता है कि ये टाइम वो टाइम पे जरूरत ही नहीं है। द रीजन इज विदाउट, करेक्ट, सो विदाउट डूइंग एनी रेमेडीज यू विल गेट दैट थिंग एट दैट टाइम ओनली। कि अगेन ये सारी चीजें कैसी है कि हर चीज का समय तय है, हर चीज की जगह तय है। द ओनली थिंग इज वी जस्ट नीड टू पॉज एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट। हाउएवर वो राइट मोमेंट तक आने के लिए जो भी इंतजार होता है, उसमें तो लोगों का एंजाइटी और ये सब बढ़ जाता है, उसको भी हैंडल करने के लिए कुछ वे आउट होता है? लाइक इज देयर एनी रेमेडीज, कुछ रिचुअल्स और कोई जेमस्टोन, ऐसा कुछ हेल्प हो सकता है? ओके, तो यहाँ पे मैं ये चीज को ऐसे ये करूंगी, लाइक इलाबरेट करूंगी कि जेमस्टोन्स और ये अपना मंत्र हो गया, या जो भी यंत्र मिलते हैं, राइट, वो सारी चीजें कहाँ पे सपोर्ट करेंगे बंदे को, कि से फॉर एग्जांपल किसी की होरोस्कोप में ऊपर से नीचे गिरना, दैट इज तय, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्लैनेट्स, करेक्ट। वो कुछ बट कोई दिस कुछ नहीं कर सकता रेमेडीज, उसमें, वो तो होना ही। हाँ हाँ, वो होना ही है, राइट, बट दैट रेमेडीज विल हेल्प कि वो नीचे गदा बिछा देंगे। हम्म, मतलब वो कितना मतलब हड्डी नहीं टूटेगी, थोड़ा खरोच लग सकता है टाइप्स। एग्जैक्टली, हाँ, खरोच हो सकता है, बट पूरा ब्रेक नहीं होने देंगे हाँ। उसको। दूसरी चीज है कि स्पिरिचुअल आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हो, आपका कोई भी चीजों पे जैसे फेथ रहेगा, डिवाइन पे रहा, कोई लोग यूनिवर्स को मानते हैं, कोई एंजल्स को बिलीव करते हैं, या तो कोई ये अपने स्टोन्स हो गए, या उसको बिलीव करते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हैं, अल्टीमेटली उसमें भी आपको एक एनर्जी डालनी पड़ती है। आप जो सोचोगे वो आप वहां पे डालोगे, राइट, एंड अल्टीमेटली वो आपको वापस वो एनर्जी करेगा। सो वी जैसे रेमेडीज और रिचुअल्स की बात हो रही है, तो मुझे अभी और एक चीज ख्याल आया, जो भी बहुत सारे रेमेडीज कुछ होते हैं ना, कुछ अजीब से होते हैं, कि रात को 12 बजे जाके पीपल ट्री में के सामने आपको दिया जलाओ, या तो नो इस दिन में काला कुत्ते को आप कुछ खिलाओ, या गाय को कुछ खिलाओ। वो कितना इफेक्टिव होता है, और कितना इट्स लाइक इट्स रियली रिलेवेंट होता है? इसका कनेक्शन क्या होता है कि प्रॉब्लम के साथ और सोल्यूशन के साथ? ये थोड़ा हमेशा कंफ्यूजन रहता है मुझे इसमें। आप देखोगे ना, तो प्रकृति ने सारी चीजों को किसी ना किसी प्लेनेट के साथ कनेक्ट किया है। कि जैसे काला कुत्ता है तो उसको राहु के साथ एडजस्ट कर दिया,
गाय है तो उसमें 30, बोलते हैं ना कि 32 करोड़ सारे देवता उसी में है, गाय में। तो गाय को आप घास खिलाओगे तो वो सारे देवता है वो खुश होते हैं और वो आपको ये करेंगे, मतलब ब्लेस करेंगे। पीपल है तो अगेन पीपल को विष्णु जी के साथ, गीता में आप देखोगे तो भगवान ने खुद बोला है कि जो भी पेड़ है उसमें पीपल मैं हूँ। तो ये बहुत सारे रेमेडीज होते हैं, बहुत थोड़ा वो डिफिकल्ट होता है और थोड़ा क्या बोलो उसको, नॉर्मल नहीं होता है जो नॉर्मल टाइम पे किया जा सके। हाँ मतलब जस्ट दैट ये सब रेमेडीज थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा नॉट नॉर्मल वे, जो कि कुछ तो मतलब इट्स नॉट इजीली अवेलेबल वन भी होता है कुछ कभी। सम एस्ट्रोलॉजर्स इन इवन अभी आजकल सोशल मीडिया में बहुत कोई बहुत कुछ बोलते हैं। सो आई ऑलवेज वंडर कि हाउ रेलिवेंट एंड एक्यूरेट एंड आर दे। एंड जो भी बोलते हैं बहुत ही कुछ कुछ चीजें तो बहुत ही डिफिकल्ट बोलते हैं, जो लोग कैसे करते भी है या करते हैं तो कैसे करते हैं, मतलब आई रियली वंडर। राइट। सो और एक चीज होता है जो बहुत ही अवेलेबल होता है ना इन द मीडिया, स्पेशली बी इट और न्यूज़पेपर पहले होता था और अभी ऑनलाइन पे भी होता है, जो डेली हॉरोस्कोप। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट, लाइक डू दे रियली गिव एनी रियल इंसाइट और आर दे टू जेनरिक, और मतलब किसी को उससे कुछ गाइडेंस लेना भी चाहिए, और हाउ इट इज लाइक? ओके, सो लाइक लेट मी आर्टिकुलेट इट दिस वे कि डेली होरोस्कोप है ना, उसको आप एज अ फन या एंटरटेनिंग वे से उसको ये ट्रीट कर सकते हो। बट यस, अगेन डेली होरोस्कोप्स जितना भी है ना वो आपको हेल्प कहाँ पे करेगा, सेल्फ अवेयरनेस के लिए या इंट्रोस्पेक्शन के लिए। सेकेंडली, दे ऑफर डेली डोज फॉर योर इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। सो बहुत बार ना ऐसा होता है कि आपने न्यूज़पेपर में ऐसा रीड किया कि आज का दिन आपका अच्छा जाएगा या तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, राइट? तो वो बैकग्राउंड में वो मैसेज स्टोर हो जाता है और सेल्फ अवेयर रहते हो कि हाँ ठीक है, चलो आज ये हुआ तो आज मेरे साथ अच्छा ही होना है, करेक्ट? सो समवेयर इट हेल्प्स कि आपको एक मोटिवेशन मिल जाए वो दिन का। बट अगेन इट हैज सम सेटबैक्स एज वेल बिकॉज इट्स अ जनरलाइज प्रेडिक्शन। आप देखेंगे तो जो डेली होरोस्कोप्स है दैट आर बेस्ड ऑन योर सन साइन। सो उसमें बंदे का कभी भी इंडिविजुअल बर्थ चार्ट ये नहीं किया होता है, वो तो पॉसिबल ही लाइक नहीं होगा। हाँ। बुक नहीं करा है, राइट? वो हम्म। पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। दूसरा कि मेष राशि में सपोज पैदा होने वाले लोग हैं या सिंह राशि में कोई पैदा हुआ है, तो लोगों को वो भी नहीं पता है कि वेदर आई नीड टू फॉलो माई मून साइन या सन साइन। तो वो दोनों समझ के उसको स्टडी करते, दोनों पढ़ेंगे कि जो अच्छा है वो ले लेंगे, जो बुरा है उसको ड्रॉप कर हाँ, देंगे। ये भी एक कि कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जोडिएक देखना है, मून साइन वाला देखना है कि सन साइन वाला देखना है। तो आप देखोगे ना तो डेली होरोस्कोप्स आर मेनली फोकसिंग ऑन योर सनशाइन्स ओनली। हाँ, सो जोडिएक के अगेन, बेस पे लाइक। हाँ तो उसी के बेस पे वो रहता है। दूसरा कि उसमें ना इन डेप्थ प्रेडिक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा, वन लाइनर या टू लाइनर ही मिलेगा। तो उससे आप जो अपने अपने को ठीक लगता है उसको वो हिसाब से आप ये कर सकते हो। जो पसंद आए उठा लो। हाँ, जो पसंद आए उतना कैरी कर लो वैसा। दूसरा कि आप देखेंगे ना तो डेली होरोस्कोप में स्पेसिफिक इवेंट्स नहीं आएंगे, या तो जो इवेंट्स उन्होंने बताए वो इरिलीवेंट होंगे। वहां पे होगा कि सपोज जॉब की अच्छी तक आज आपको मिल सकती है, बट आप जॉब ढूंढ ही नहीं रहे हो तो आपके लिए वो प्रेडिक्शन कुछ काम का नहीं है। हाँ, रेलिवेंस नहीं शादी है। के योग आप आज बन सकते हैं, तो व्हाट इफ समवन इज ऑलरेडी मैरिड, तो उसके हम्म। लिए वो कोई प्रेडिक्शन काम का नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी होता है कि जो स्टूडेंट्स है तो वो मतलब फॉर अस इट इज नॉट रेलिवेंट दैट वे। करेक्ट, तो हो सकता है वो टू लाइन में कितना कुछ अकोमोडेट हाँ। करेंगे, राइट? सो एवरी इंडिविजुअल के लिए वो मुझे रिलेवेंट नहीं लगता है वैसे। बट यस, फॉर मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एक इंट्रोस्पेक्शन, इट जेनेरिक हेल्प्स अ गाइडेंस लॉट। के लोग मतलब पढ़ भी सकते हैं, लाइक आई थिंक नॉट कि उसको हार्ड फास्ट रूल बना के फॉलो करें, लेकिन आप करेक्ट। एक गाइडेंस के लिए, एक मोटिवेशन के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हो डेली, सो दैट दैट मे और मे नॉट मैच विद जो भी आपका रियल थिंग्स है। आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकता पर तभी उसको बताया ना कि उसको आप एज अ फन ट्रीट करो या एज एन हाँ एंटरटेनिंग कुछ भी इवेंट ट्रीट करो, वैसे आप उसको एंटरटेनिंग रिफर करो, कर सकते। मोटिवेशन के लिए करो, बस उसको मतलब पकड़ के मत रखो, लाइक उसको करेक्ट। एकदम उसी को, उसकी पे भरोसे सब कुछ मत करो टाइप्स।
अपना राइट। विजडम यूज करो, विच आई ऑलवेज से कि अपना खुद का विजडम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो भी अप्लाई करो एंड गो टेक एज इट, जो भी आपको लगता है सही ऐसे। राइट। सो अगर अभी इन दिस हाउ मच, अभी अनदर थिंग इज दैट कंपैटिबिलिटी मैच जो होता है एस्ट्रोलॉजी में। सो what is the truth around that? Like, can astrology predict a successful relationship? Yes, even I see it this way कि compatibility is must in your each and every relationships. Whether it is your child, whether it is your life partner, whether it is your parents, your partner, business partner. आप देखेंगे ना तो सारे लोग जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो कहीं ना किसी कार्मिक बंधन से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। I'm एंड sure. आप जब भी कॉम्पिटिबिलिटी मैच करोगे तो वो टाइम पे वो चीज भी वहां पे आएगी, बिकॉज इट इज बेसिकली दो होरोस्कोप जिसको एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं कि एक बंदे का दूसरे बंदे से जुड़ना दोनों के लिए कितना फ्रूटफुल रिलेशन हो सकता है। So you brought a nice point कि just not marriage, लेकिन business में भी अगर कोई partnership में जा रहा है या तो some kind of association, तो उसके लिए भी compatibility match कर सकते हैं in that way. यस, एंड वो करना ही चाहिए, बिकॉज बहुत बार है ना कि आपके होरोस्कोप में बिजनेस के योग बहुत अच्छे हैं बट आपके पार्टनर में वो नहीं है, तो हो सकता है जब तक आप अकेले कुछ चला रहे हो तो बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे ही किसी का एसोसिएशन हुआ वो कोलैप्स हो जाएगा, या तो उसको विजा वर्सा अलग तरीके से देखते हैं कि आपका अच्छा नहीं है मगर किसी और का आपके गाड़ी में बैठने से आपकी गाड़ी पटरी पे चल रही है प्रॉपर। करेक्ट, दैट वे आल्सो, हाँ, ये भी वैलिड पॉइंट है। सो वे भी हम देख सकते हैं, इसमें दैट गाइडेंस हो सकता है। नाइस। इवन आप एक फैमिली में भी देखोगे ना तो किसी के पास मतलब किसी को 2 चाइल्ड है से फॉर एग्जांपल, तो वहां पे बहुत बार ना पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि यार ये तो लेने ही आया है, ये तो मुझे देने ही आया है। तो दैट इज ऑल्सो ऋणानुबंध कि आपका बच्चा आपको देने आया है या लेने आया है, तो दैट इज नथिंग बट दिस कॉम्पिटिबिलिटी ओनली। Is what kind of karma and all connection. हाँ, nice, right. So also there are like जैसे हमने ट्रांजिट की बात किया है, so there are also like solar eclipse और lunar eclipse जो भी हमें हमारे लाइफ में influence करता है, so it also serves as a catalyst for personal or like collective healing. So इसमें एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट में लाइक जैसे एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट में इमोशनल का, स्पिरिचुअल का हीलिंग भी होता है, देयर लाइक लॉट ऑफ चेंजेस हैपन, सो एक्लिप्स में भी होता होगा। सो हाउ डू यू डिफाइन दैट? और ये जो मून का जो भी है गाइड, इमोशनल हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो भी चेंजेस होता है मून के शेप के साथ, उसका एस्ट्रोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है और उसको हाउ वन कैन डील विद दैट? कैसे उस जो भी इफेक्ट होता है उसमें कैसे कोई सरवाइव कर सकता है या निकल सकता है स्मूथली? राइट। सो बेसिकली ना एक्लिप्स को आप देखोगे तो जितने भी योगी है या सेंट्स है, राइट, दे ट्रीट एक्लिप्स एज एन क्या बोलते हैं उसको, हाँ, दे ट्रीट एक्लिप्स एज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वो टाइम है जब वो इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। इवन आप देखेंगे तो सोलर एक्लिप्स है वो मेनली अकर्स व्हेन देयर इज नो मून, और वी कॉल इट एज अ न्यू मून डे। सो न्यू मून डे इज अ बेस्ट डे टू सेट सम इंटेंशंस, टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स। सो वो टाइम पे आप कोई भी एक इंटेंशन से कुछ भी चीज उसको प्लांट करते हो ना, तो वो टाइम है जब आप सीड्स प्लांट करने का टाइम है फॉर योर फ्यूचर ग्रोथ। तो उसको ना सोलर एक्लिप्स को कभी भी मैं तो नहीं मानती कि उसको नेगेटिव लेना चाहिए, रादर वो टाइम है जब आपको मैक्सिमम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए विथ प्योर इंटेंशन, कि जब भी कुछ भी चीज स्टार्ट करनी है तो एक इंटेंशन वो और उसका रिजल्ट आप देखो। तो सोलर एक्लिप्स के ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स किसी को स्टार्ट करना चाहिए कि उसके बाद करना चाहिए? लाइक ओके, सो ड्यूरिंग एक्लिप्स आप वो संकल्पा रख सकते हो और उसको वो संकल्पा को एक बोलते हैं ना कि उसको एक सीड प्लांट किया आपने और उसको एनर्जाइज किया विथ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ओके, सो उसके मतलब उसको इंटेंशन के साथ आप स्टार्ट का रख सकते हो, उसके बाद स्टार्ट आप उसके बाद करो दैट वे।
बात करो, करेक्ट। सेकेंडली आप देखेंगे तो ल्यूनर एक्लिप्स है, वो टाइम है चीजें रिव्यू करने का। जो आपने बोया था ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, वो Okay. टाइम है ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पे वो चीज को रिव्यू करो। इन बिटवीन जितना भी सन का या मून का जो भी फेज रहेगा, राइट, तो वो साइकिल के दौरान आपको उसको एटलीस्ट यू गो विद द फ्लो। और जैसे आपको लगता है कि हाँ चलो फुल मून हो गया, नाउ इट्स मून का जर्नी टूवर्ड्स अमावास्या, तो वो टाइम पे अगेन आपको पॉज देना है। ओके। हाँ, तो ये समझना जरूरी है कि कहाँ आप शुरू कर सकते हो, कहाँ पे आपको पॉज करना है, कहाँ पे आपको एनालाइज करना है कि आप क्या राइट, कर रहे हो, कहाँ तक आए हो, एंड देन यू कैन रीडू द थिंग्स। सो ये हमारे एक लिस्ट हमारी लाइफ में ऐसे ही, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, सो ऐसे ही इन्फ्लुएंस करता है। जो हम इस फेज को अंडरस्टैंड करेंगे तो राइट। स्मूथली निकल सकते हैं। So again I try to understand कि बहुत सारे ऐसे आज हमने बहुत सारे कुछ डिस्कस किया। मेरे लिए बहुत सारे कुछ क्लियर हो, आई एम श्योर फॉर द ऑडियंस आल्सो दे गॉट समथिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आई एम श्योर देयर आर सम काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और myth against astrology that as an practitioner you must be facing. तो how do you address that kind of skepticism? ओके, सो सम बेसिक आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी इंक्लूड्स कि ये प्रेडिक्शंस सच्चे नहीं होते हैं, या तो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं होते हैं, राइट। सो वो चीज वहां पे इम्पैक्ट करेगी कि पीपल ऑलवेज सी एन एस्ट्रोलॉजर एज अ मैजिशियन, बट मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ मार्गदर्शन, कि Exactly, एक गाइडेंस चीज कोई है। भी स्पिरिचुअल टूल्स और गाइडेंस होता है, पे एक्शन तो एग्जैक्टली, खुद को लेना हाँ। होता है। और दूसरा आप देखोगे तो वेदर इज ऑल्सो अ फोरकास्ट, राइट। हम्म। तो वो वेदर डिपार्टमेंट भी आपको फोरकास्ट करेगा कि इट मे रेन, इट मे नॉट। हो सकता है जिस दिन उसने बोला कि आज रेन बहुत आएगा, वो दिन धूप निकले, राइट। बिकॉज कोई भी है जो ईश्वर के ऊपर तो कोई शक्ति नहीं है। बट अगेन एज इन अवर वैदिक एस्ट्रोलॉजी वी कॉल एस्ट्रोलॉजी एज अ ज्योतिष, जो ईश्वर की ये है, ऊर्जा है। वही एस्ट्रोलॉजी को ज्यादा वो प्रेडिक्शन के हिसाब से ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, राइट, इन दैट कि Right. हमारा फ्यूचर बता देगा। तो इसमें कोई कोई डर भी होता है लोगों का कि फ्यूचर से हमें फ्यूचर नहीं जानना है, या पता नहीं क्या निकल के आएगा, फ्यूचर को ना ही जाने तो अच्छा है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो यू फेस्ड विद योर क्लाइंट्स? सी नॉट ऑलवेज, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर के पास वही जाएंगे जिसको बिलीफ है या तो जिसको जानना है। दूसरा आप देखोगे तो कोई भी हीलर है या तो एस्ट्रोलॉजर है, उनके पास वही लोग जाएंगे जो तकलीफ में है। तो इट इज वेरी इजी, जब आपका सब अच्छा चल रहा है तो आप कहीं पे भी कुछ भी बिलीव नहीं करोगे, लोग मंदिर में भी नहीं जाएंगे वो टाइम पे। बट जब तकलीफ होती है तो पीपल गो एंड वर्शिप, राइट। सो इट्स लाइक दैट कि जब सब बराबर चल रहा है तो किसी का कुछ जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हम बीमार होते हैं। कोई कोई मतलब इन द केस ऑफ फॉर लॉट ऑफ केसेस आई हैव फाउंड लाइक लोगों का जैसे टैरो के प्रति ये है कि प्रेडिक्शन कर सकता है टैरो, सो आई डोंट वांट टू नो द फ्यूचर। तो वो एक डर होता है कि पता नहीं क्या निकल के आएगा। सो वेयर जो जबकि टैरो इज नॉट अबाउट फ्यूचर प्रेडिक्शन, इज अबाउट गाइडेंस। सो Correct. करना तो आपको कर्मा करना है, तो फ्यूचर उसी पे डिपेंड होगा, जो भी आप करोगे वही भरोगे। भरोगे। लेकिन वो लोगों का वो होता है। तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव से। तो वेल जो भी इफ आई टॉक अबाउट द प्रेडिक्शन और गाइडेंस टूल फॉर एस्ट्रोलॉजी, आपके बहुत सारे जो भी क्लाइंट्स का केसेस होगा, तो एक दो कुछ केसेस आप डिस्कस करना चाहोगे कैसे एस्ट्रोलॉजी ने हेल्प किया है? ओके, सो कई कई बार ऐसा होता है कि कोई आया आपको बताने के लिए कि मेरी बेटी का सपोज 28 ईयर रनिंग है और मुझे कुछ भी करके उनका शादी कर ही देना है। बट जहाँ पे उसकी डेस्टिनी अलाउ नहीं कर रही है कि शादी होगी तो आफ्टर 30 करोगे तो सही रहेगा। तो देर आर मैनी इंस्टेंसेस कि जल्दी शादी करने के बाद अनफॉर्चुनेटली शी इज सफरिंग, या तो वो फिर इन बिटवीन टूट जाता है, फिर वापस रीजॉइनिंग आएगा चीजों को। तो बोलते हैं ना कि जो भी यूनिवर्स के लॉ है ना उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। और दूसरा वो भी है कि कुछ कुछ चीजें आपको स्टार्ट करनी है, जैसे किसी के होरोस्कोप में बिजनेस का योग बहुत अच्छा है बट ही इज डूइंग जॉब,
वो टाइम पे एस्ट्रोलॉजर का रोल है कि उसको एटलीस्ट एक करेज दो, एक मोटिवेशन दो और राइट पाथ पे डायरेक्शन दो कि जॉब तो चली रही है, पैरेलली आप थोड़ा थोड़ा बिजनेस में स्टार्ट करो एंड वन फाइन डे यू विल सी कि दे फ्लरिश लाइक एनीथिंग। कि जितना वो लोग जॉब में टैक्स भरते हैं ना, मतलब जितना बिजनेस में टैक्स भरते हैं, उनका एक टाइम का जॉब का मंथली सैलरी होता है या तो ईयरली पैकेज होता है। हाँ, तो वही सही चीज सही टाइम पे करने के लिए जो गाइडेंस होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो एस्ट्रोलॉजी दे सकता है। सो दैट वे, सो well, so any tips and guidance for the audience जो follow कर सकता है in for someone in daily life? ओके, तो बेसिकली आप देखोगे ना तो यूनिवर्स हैज ब्लेस्ड अस अबंडेंटली। अपने पास बहुत कुछ चीजें हैं जिसका हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ईच इंडिविजुअल शुड स्टार्ट मेडिटेटिंग। इवन दे कैन स्पेयर जस्ट 10 मिनट्स इन अ डे। सो बी माइंडफुल सो दैट स्ट्रेस कम होगा तो फोकस अपने आप इम्प्रूव होगा और दैट विल हेल्प अस फॉर इमोशनल वेलबींग। सेकेंडली, जैसे मैंने बताया कि express your gratitude not only to the universe, to the divine, but every person who is there in your life, who is supporting you day and night. You just need to express your gratitude. बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे we want to do everything all alone, right? And stress वहीं से build करते हैं. So ideally we should seek support और guidance either through astrologer हो गए या healers हो गए, friends, family. They are the persons who are they are not having any specific degrees, but they are great healers in our life. Secondly, when you make prayers as your habit, then miracles will become your lifestyle. So one just need to keep praying. Exactly, that's prayers are like of course belief के ऊपर होता है सब कुछ, faith के ऊपर होता है. So prayers are the best, I think, instrument, I'll say. Gratitude is the weapon जो सब कुछ sort out कर सकता है in that. Wonderful. Thank you for sharing this wonderful guidance again. And yes, wow, Deepal. I think like there this astrology field, this entire thing is very vast. So considering our time constraint, so I think we have discussed a lot, and you have shared a lot of insight, and a lot of things were very new for me as well. And thank you for all the knowledge you have shared today. I'm so happy and grateful. Thank you so much for coming. Thank you for inviting me and giving me like this platform to express my views. Yeah, pleasure is all mine. I'm really happy and grateful. Thank you so much. So friends, आज हमने देखा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे मॉडर्न लाइफ में भी एक पावरफुल टूल बन सकती है। चाहे हमारे डिसीजंस हो या हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग, प्लैनेट्स और स्टार्स का असर हमारी जिंदगी में बहुत गहरा होता है। और योर चार्ट can be a guide for your life journey to take an informed decision to choose the right path. और कैसा लगा आज का एपिसोड हमें जरूर बताइए। प्लीज डू शो योर लव इन लाइक, कमेंट एंड शेयर्स। और आर्किड यूनिवर्स को फॉलो जरूर कीजिए फॉर ऑल द फ्यूचर अपडेट्स। मिस डिपल से कनेक्ट करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। डू कनेक्ट हर फॉर ऑल योर क्वेरीज। So with this note, I take your leave today. मिलते हैं next Sunday with another interesting episode to contribute in your journey. Till then, do take care of yourself and do follow the guidance of the stars. Stay cosmic. Good night.